tell me something about yourself. Introduce yourself. Yes, sir. Sir, my name is Parikshit Sharma. I am from Bhilwara, Rajasthan. I have completed my BTech from Government Engineering College, Ajmer in 2015. After that, I have completed my MTech from IIT Kanpur in 2019. And after which I have been preparing for government engineering examinations. And my hobbies are playing the guitar and singing. Singing. Okay. Well, you are from the MTech from the IIT Kanpur and Yes. BTech from the Government Engineering College Ajmer. Basically, you are from the Bhilwara, Rajasthan. Then why do you want to join the job in the UP? Have you tried for the RPSC? No, sir, I haven't tried for RPSC because at that time my master's MTech was going on, and so I couldn't prepare for it. And so yes, sir, I haven't tried for RPSC. And presently, sir, as I have done my MTech from IIT Kanpur, so I'm very much familiar with the culture of UP, and Rajasthan and UP have the similar cultures. And so I have applied for this job, and sir, this is a very prestigious job. So yes, sir. So I have applied for UP jobs. You have completed MTech from the IIT Kanpur. You have a good education background and masters you have done. You should do the PhD or you should go for the higher education or something in the private sector. Why do you want to join this IL job in UP PSC? Yes, sir. Firstly, for PhD, sir, after completion of my MTech, I realized that I do not have that much motivation toward the research field. I had more motivations for applying my BTech and MTech knowledge in the field. So that's why I prepared for engineering examination. And secondly, when coming to private sector, sir, this job, sir, in the field of civil engineering, at the starting, the pace of civil engineering, I wanted to work in the core field, not like other IITians who go for corporate jobs. But in the field of civil engineering in private job, there is a lot of struggle at the initial days, and pay is also very less. So that is the reason, sir, I applied for. As I wanted to work in the core engineering field, so I am preparing for government engineering examinations. Somehow, if you selected in the UPSC engineering services examination, will you left it? Will you left this UP PSC JN? Sir, at this point of time, UPSC is very distinct. बहुत दूर की सोच है अभी सर, उस बारे में मैं सोच नहीं सकता सर, तो इसलिए मैं वो डिसीजन अभी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि सर अभी तो मेरे हाथ में सिर्फ यही है, तो इसलिए सर मैं इस चीज का जवाब अभी नहीं दे पाऊंगा. ओके, तो बेसिकली आप सिर्फ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो ये यूपी पीएससी? कोई जॉब नहीं है इसलिए सिर्फ एक नौकरी ज्वाइन करनी है, या कोई और उद्देश्य भी नहीं है? नो सर, सर मुझे इस जॉब के थ्रू मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसका फील्ड में एनालिसिस का अप्लाई का बहुत अच्छा मौका मिलेगा. सर मैं इस जॉब को बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है सर. इस जॉब को देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस व्हिच कैन बी मेड इन द वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कैन बी डन. वो इस जॉब के थ्रू मुझे मिलेगा. एंड सर दिस इज लास्टली बट नॉट द लीस्ट, दिस इज अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब. सो दिस इज द रीजन दैट आई एम अप्लाइंग फॉर UPEN jobs. I am ready. Yes. Okay, you said that your hobby is singing. You like singing. So which type of singing? कौन से तरह का संगीत या कुछ गाना आपको पसंद है? सर मुझे बहुत सारे सिंगर्स पसंद हैं. अगर पुराने में बात करी जाए तो मेरे फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट सर मोहम्मद रफी हैं, और मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह के गाने सुनता हूँ. अगर इंग्लिश में बात करूँ तो मुझे पिंक फ्लॉयड और कोल्डप्ले बहुत पसंद है. और अभी के वक्त बात करी जाए तो मुझे सोनू निगम की सिंगिंग बहुत पसंद है. नहीं, हिंदी, अगर हिंदी में अभी गानों की बात की जाए तो सबसे अच्छा लिरिसिस्ट कौन मानते हैं? किसको मानते हैं इस समय का, अभी वर्तमान समय में सबसे अच्छा गाने कौन? अच्छा, ये सर लिरिसिस्ट के बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, पर मैंने जावेद अख्तर को जितना सुना है तो जावेद अख्तर के लिरिक्स मुझे बहुत, गानों के लिरिक्स मुझे काफी पसंद है. पर वो आज से 20 साल पहले का एरा है. जावेद अख्तर का एरा आज से 25 साल 20 साल पहले के गाने ज्यादातर वो लिखते हैं. आज के एरा में किस सिंगर को आप सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं? आज के एरा में सिंगर
सर सिंगर को मैं अरिजीत सिंह को बहुत पसंद करता हूँ, सोनू निगम को बहुत पसंद करता हूँ, ये सर मेल सिंगर्स में। और फीमेल सिंगर्स में बात करूँ तो सर श्रेया घोषाल मुझे बहुत पसंद है। आपने वो गाना सुना है तेरी मिट्टी? नहीं सर, अभी तो याद नहीं आ रहा सर। केसरी मूवी का, केसरी मूवी का गाना है जो पुलवामा के शहीदों के। ये सर मैंने वो गाना सुना है पर मुझे उसके लिरिक्स याद नहीं है सर। कौन है उसका सिंगर? वो कौन है उसका सिंगर, याद है आपको उसका? सर क्या अरिजीत सिंह है सर, मुझे पक्का नहीं पता पर शायद अरिजीत सिंह। बी प्राक, बी प्राक। Yes, उनके मुझे दूसरे गाने पसंद नो है इशू सर। फॉर द। बी प्राक। आप अपने आप यू आर फ्रॉम द भीलवाड़ा, कैन यू से समथिंग अबाउट द भीलवाड़ा? भीलवाड़ा, you are from basically from भीलवाड़ा, no? Yes sir. Tell me something about भीलवाड़ा. सर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट सर राजस्थान के साउथ वेस्ट में पड़ता है और सर ये अपनी एग्रीकल्चर मार्केट के लिए बहुत फेमस है। और सर इसके जस्ट नियर बाय जहाँ से मैंने मेरी ग्रेजुएशन करी है वो अजमेर है। तो वो ख्वाजा की नगरी कहलाती है सर। पुष्कर बहुत हमारे पास में है। एक साइड सर उदयपुर है, एक क्या ये साइड इसको वस्त्र नगरी नहीं कहते? इसका कपड़ों से रिलेशन नहीं है, वस्त्र नगरी नहीं कहते, तो मैनचेस्टर नहीं कहते राजस्थान का? हाँ सर वही ना, मतलब इसका जो कपड़ा मार्केट है वो पूरे ऑल ओवर द इंडिया बहुत फेमस है। Okay. For the technical round, I request you to Neeraj sir. They will continue with us. Neeraj sir, please ask some question from the technical area of interest. थैंक यू सर। परीक्षित, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है टेक्निकल्स में? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है उसमें जो हम बेंडिंग में डायग्राम बनाते हैं स्ट्रक्चर के, वो क्यों बनाते हैं? हमें क्यों रिक्वायरमेंट है उनका? यस सर। सर एक बीम पे या एक किसी भी स्ट्रक्चर पे बहुत अलग अलग तरह की लोडिंग होती है। तो सर उसके लिए हमारे को उसके लिए ये पता करना जरूरी है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, क्योंकि उसी पॉइंट पे फेलियर होता है। तो उस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की लोकेशन को पता करने के लिए हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो हम अच्छा, ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई। अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो जो बीएमडी है हमें क्या बताता है प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो? सर प्लीज रिपीट सर, सॉरी सर। जैसे आपने कहा कि मैक्सिमम बेंडिंग पॉइंट होगा वहां पर मेंबर फेल होगा, लेकिन yes, हमें इससे क्या पता चलता है कि हमें क्या पता चला कि बीएमडी डायग्राम से? सर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के बाद सर हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की लोकेशंस मिलेगी ना सर? जिस तरीके से डिफ्रैक्टेड शेप होगा मेंबर का वैसे ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। यस सर। नोटिस करना फॉगिंग और सैगिंग सर अगर पॉजिटिव मूवमेंट है तो उसी मतलब वो डायरेक्शन आपने क्या साइन कन्वेंशंस लिए उससे बेंडिंग मूवमेंट पॉजिटिव, सैगिंग नेगेटिव, हॉगिंग उस तरीके से। और आपके पास एक स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर रहता है। यस सर। तो जो अगर फिक्स एंड है, तो अगर कोई बीम है उसके बोथ एंड फिक्स है, यस उसके ऊपर लोड लग रहा है तो उसके यूडीएल लग रहा है सर। यस यस सर। तो स्लोप कितना आएगा वहां पर? सर फिक्स एंड पे तो स्लोप 0 आएगा, दोनों फिक्स एंड पे तो। और मिड पॉइंट पे भी अगर यूडीएल पूरा लगा हुआ है, पूरी बीम पे लगा हुआ है तो मिड पॉइंट पे भी स्लोप 0 आएगा। और डिफ्लेक्शन? सर डिफ्लेक्शन एंड पॉइंट्स पे जहां पे फिक्स्ड एंड है वहां पे तो 0 ही होएगा, और जो मिड पॉइंट है उस पे सर उस पे WL³/192 EI। W सर लोडिंग ऑफ द W यूनिट लोड की इंटेंसिटी है, L इज लेंथ एंड E इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सही है। कुछ चेंज करना चाहोगे? यस सर, WL³/192 EI। यस सर। बस बताया तो ये पॉइंट लोड के लिए था। ओके सर, वो यस सर ये पॉइंट लोड के लिए। ओके यस सर, माय मिस्टेक। यस सर। एक कैंटिलीवर बीम है, उस यूवीएल लोड लग रहा है, यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड। यस सर। इसका पोर्शन फ्री एंड की तरफ है,
तो स्लोप का वैल्यू कितना चाहिए फिर एंड पर? सर मुझे सर ये याद नहीं है सर, इसकी स्लो की मैं निकाल सकता हूँ सर, पर मतलब नहीं, इसकी फिक्स वैल्यू होती है। अगर मैं ऐसे कहता कि अगर आपके पास फिक्स है और मैक्सिमम वैल्यू फ्री एंड पर है तो आपको निकालने की जरूरत पड़ता, इसका वैल्यू फिक्स रहता है। अच्छा, कितने टाइम में निकाल दोगे? सर एटलीस्ट 8-9 मिनट लगेंगे सर, 8-10 मिनट तो लगेंगे सर। इसका वैल्यू फिक्स रहता है, अगर आपको याद हो तो WL 4/30 है। अगर फिक्स की तरह अगर मैक्सिमम होता तो अपने पास WL 4/80 में से माइनस करना पड़ता। कोई बात नहीं, स्प्रिंग भी रहता है एक चैप्टर आपने अगर पढ़ा हो तो। यस सर, स्प्रिंग। तो जो हमारे पास घड़ी होती है, हमारी हैंड वॉच जो होती है, उसमें कौन से यस स्प्रिंग सर, हम? यस सर, घड़ी के अंदर में कौन सी स्प्रिंग? हाँ, ये जो अपने पास हैंड वॉच है इसमें कौन यस सा सर। स्प्रिंग यूज? सर मुझे पक्का तो नहीं पता, पर क्या है, हेलिकल स्प्रिंग है। कोई कंडीशन होती है क्लोज और ओपन स्प्रिंग के लिए? यस सर। बताइए। सर अगर उसका जो एंगल है, स्पाइरल एंगल जो होता है, अगर वो लेस देन 10 डिग्री है तो सर ये क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग होगी, और अगर ग्रेटर देन 10 डिग्री है तो वो ओपन कॉइल स्प्रिंग होगी। अच्छा, अच्छा। यहाँ पर एक स्टिफनेस आता है, ये सब के से रिप्रेजेंट करते हैं स्टिफनेस। यस तो सर। स्टिफनेस के बारे में बताइए क्या होता है? यस सर, यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए जो लोड लगाना पड़ता है उसी को स्टिफनेस बोला जाता है सर। हम स्ट्रट कब कह सकते हैं? किसी कंप्रेशन मेंबर को हम स्ट्रट कब कह सकते हैं? सर एक लेंथ, यस सर। सर ये स्लेंडरनेस रेशियो पे डिपेंड करता है। अगर एक स्लेंडरनेस एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम होता है लेंथ बाय, तो उसको हम स्ट्रट बोल सकते हैं। वो वैल्यू सर मुझे अभी याद नहीं। नहीं, वो पेडेस्टल के लिए आपने बता दिया, वो पेडेस्टल के लिए वैल्यू था, मैंने स्ट्रट पूछा था। स्ट्रट के यस लिए यस यस सर, वो मैंने पेडेस्टल के लिए बता दिया। वो पेडेस्टल के लिए होता है वैल्यू 3। यस सर, वो पेडेस्टल के लिए होता है। स्ट्रट के लिए वैल्यू नहीं होती, तो स्ट्रट के लिए डायरेक्शन होती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सेकेंड आपने ट्रांसपोर्टेशन बताया था, यस तो सर। मैं पूछना चाहूंगा यूपी के अंदर अभी कितने नेशनल हाईवे है अभी एट ए परसेंट टाइम पे? नहीं सर, मुझे नहीं पता। और कितने पे वर्क चल रहा है? सबसे बड़ा हाईवे वहां पे बनने वाला है, नेशनल हाईवे, अगर आपको पता हो यूपी के अंदर। सर एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे का पता है, पर नेशनल हाईवे का मुझे। बताइए और से बड़ा कौन सा है वहां पर? सर प्रेजेंटली अभी पता नहीं है सर मुझे। अर्जेंटली नहीं पता, कोई बात नहीं। और आप हाईवे को और एक्सप्रेस वे को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सर एक्सप्रेस वे के अंदर कंट्रोल्ड एंट्री होती है, जबकि हाईवे के अंदर कंट्रोल्ड एंट्री का कोई प्रोविजन नहीं होता, उसमें ओपन एंट्रीज है। और सेकेंडली सर, जब भी हम एक्सप्रेस वे प्रोवाइड करते हैं तो एक्सप्रेस वे पे अगर कोई इंटरसेक्शन होता है तो हम ट्राई करते हैं कि हम उसको ग्रेड सेपरेटेड रखें ताकि फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। पर हाईवेज में ऐसा होता नहीं है, हम ग्रेड एट ग्रेड इंटरसेक्शन ही प्रोवाइड करते हैं। और सर हाईवे की और सर जो हाईवे की डिजाइन स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, और एक्सप्रेसवे की डिजाइन स्पीड, मिनिमम डिजाइन स्पीड सर 100 किलोमीटर पर आवर है। जैसे बता देते हैं, जो डिजाइन वैल्यू होती है एक्सप्रेसवे के लिए वो होती है 120 kg पर आवर, और जो परमिसिबल होती है 100। आप Yes, sir. डिजाइन ज्यादा के लिए करते हैं और अप्लाई करते हैं कम के लिए, क्योंकि हम Yes, sir. 100 तो नो डाउट वो ज्यादा ही फ्लो करेगा।
तो डिजाइन वैल्यू 120 है और परमिसिबल की बात करें तो वो 100 होती है। यस सर, मेरी मिस्टेक सर। उधर हाईवेज में 80 इज परमिसिबल, 100 इज डिजाइन, एंड एक्सप्रेसवे में सर हाँ 180 अपने पास नेशनल हाईवेज में रहते हैं, डिजाइन Yes. 100 किए जाते हैं, और जो परमिसिबल लिमिट होती है कि अप्लाई हो सके वो 80 रहता है। क्योंकि नॉर्मली होता है कि हम देखते हैं डिजाइन स्पीड इतना है तो ज्यादा फ्लो करते हैं लोग, क्योंकि Yes. फ्री रहता है इसी कारण से, तो डिजाइन ज्यादा के लिए करते हैं, बट जो परमिसिबल होती है कि उसमें फ्लो करना वो कम रहती है हमेशा। ठीक है, यस सर। तो क्योंकि यूपी के अंदर आप पता है कि हाईवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां पर, बहुत ही चल रहे हैं। कितने चल रहे हैं वैसे, अगर आपको पता कोई कुछ चल रहा है काम वहां पर हाईवे के ऊपर, आपको पता है कि कितने ब्रिज बन रहे हैं वहां पर अप्रोक्सीमेट? नहीं सर, अभी तो मुझे एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे का पता है। इसके अलावा सर मुझे दूसरे हाईवे प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं पता सर। तो एक आपके पास एसएसडी रहता है, क्या होता है ये? यस सर, इसका एसएसडी का एब्रीविएशन ये है। एसएसडी की फुल फॉर्म जो होती है वो है सर शॉर्ट साइड डिस्टेंस। इसका ये मतलब होता है इसका मतलब होता है कि सर मिनिमम विजिबल डिस्टेंस जो कि ड्राइवर को अवेलेबल हो रोड स्ट्रेच पे, ताकि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो वो कोलिजन ना हो। इतनी हर पॉइंट पे हमारे को मिनिमम मतलब इतनी मिनिमम साइड डिस्टेंस देनी होती है, वही एसएसडी है। और सर इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक लैग टाइम और एक रिएक्शन टाइम, और एक सर ब्रेकिंग डिस्टेंस। बताइए फॉर्मूला बताइए सर। यस सर। सर सबसे पहला जो लैग टाइम है उसके अंदर रिएक्शन टाइम हम 2.5 सेकंड कंसीडर करते हैं, तो V इंटू टी आर ये हो जाएगा रिएक्शन टाइम, एंड अनदर सर V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS से हम निकाल सकते हैं सर। उसके अंदर V को हम 0 रख देंगे और U स्क्वायर बाय 2 म्यू जी, एक्सेलरेशन को सर म्यू जी ले लेंगे, फ्रिक्शन लैटरल कोफिशिएंट आता है वो कितना होता है, म्यू का जो वैल्यू होता है? यस सर, म्यू की वैल्यू जो लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में जो इस फॉर्मूले में हम लेते हैं वो 0.35 IRC रिकमेंड करता है, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर 0.15, पर यहाँ पे तो सर लॉन्गिट्यूडल की बात हो रही है तो 0.35 दिया जाता है। अच्छा, और एक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ओएसडी भी होती है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस? यस सर, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस भी होती है सर। तो मिनिमम कितनी हो सकती है? सर उसके 3 कंपोनेंट जो हम निकालते हैं उसको 3 पार्ट में निकालते हैं, पर उसका जो मिनिमम का क्राइटेरिया सर मुझे अभी नहीं पता। कुछ 3 टाइम्स और कुछ 5 टाइम्स पढ़ा होगा आपने? यस सर, वो ओवरटेकिंग जोन होता है सर। 3 टाइम्स ओवरटेकिंग जोन, जब हम पूरे हाईवे स्ट्रेच पे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं दे सकते तो उस केस में हम कुछ जगह पे ओवरटेकिंग जोन्स दे देते हैं, जो कि मिनिमम वैल्यू उसकी 3 टाइम्स ऑफ ओएसडी होता है, और मैक्सिमम जो रिकमेंडेड वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू मतलब इतनी तो देनी है, वो 3 टाइम्स ओएसडी है, और जो रिकमेंडेड वैल्यू है वो सर 5 टाइम्स ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है, इस ओवरटेकिंग जोन की लेंथ। ये आईएसडी क्या रहता है? सर ये इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होता है, जिसकी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है। अगर हम हाईवे की बात करें तो एक लेन की विड्थ कितना होना चाहिए? सर सिंगल पेमेंट है तो उसकी 3.75 मीटर है प्रोवाइडेड विदाउट कर्व, और अगर मल्टी लेन की हम बात प्रोवाइडेड विद कर्व, और अगर मल्टी लेन की बात करें तो 3.5 मीटर पर ईच लेन। अगर मान लो कि मैं एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ तो इंटरमीडिएट कितना रखूंगा मैं? इंटरमीडिएट जो लेन होती है वो कितने की होगी? सर 3.5 मीटर। नहीं, सॉरी सर, मुझे नहीं पता सर। चलिए ठीक है सर। रामधन सर आप पूछ, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, तो आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आप सबसे पहले बताइए कि कोलैप्सिबिलिटी क्या होती है? कोलैप्सिबिलिटी,
सॉइल के अंदर आप पढ़ते हो, तो कोलेप्सिबिलिटी पूछ रहा हूँ मैं, वो क्या होती है? यस सर, यस सर। हम्म सॉरी सर, कोलैप्स करने की टेंडेंसी क्या सर? किस वजह से कोलेप्स करने की टेंडेंसी? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, आराम से सोचो। कोलेप्स यस करने की टेंडेंसी बिल्कुल सही है, किस वजह से? सर, ये हाई हाई लोड जब लगा देंगे तो अगर वो लोड सीरियस स्ट्रेंथ नहीं, से। लोड की वजह से नहीं, मॉइस्चर में चेंज करने की वजह से जो सोइल के अंदर वॉल्यूम में चेंजेस आता है, उसको अपन कोलेप्सिबल बोलते हैं, उस टर्म को यस कोलेप्सिबिलिटी बोलते हैं। सर। ठीक है, चलो कोई नहीं। आप मुझे ये बताओ कि जो कंप्रेशन और कंप्रेसिबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है? सर कंप्रेशन और कंप्रेसिबिलिटी। सर कंप्रेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर सर एक्सपोजर ऑफ एयर होता है, उसके कारण वॉल्यूम डिक्रीज करता है। और कंप्रेसिबिलिटी, वॉल्यूम दोनों में। यस सर, और कंप्रेसिबिलिटी टेंडेंसी है हाँ, सर, जिस मतलब कंप्रेसिबिलिटी एक टेंडेंसी है सर, कम मतलब कोई एक कुछ सर अभी बता नहीं पा रहा हूँ सर। क्या सर कंप्रेसिबिलिटी? जब कंप्रेशन होता है सोइल का, तो यस जो सोइल है वो सेचुरेट रहेगी या ड्राई रहेगी या पार्सली सेचुरेट रहेगी सर, वो कंप्रेशन के केस में? पार्शियल, यस सर, वो पार्शियली सैचुरेट रहेगी सर। बिल्कुल पार्सली सेचुरेट रहेगी। और कंसोलिडेशन में? सर वो कंप्लीटली सैचुरेटेड रहेगी। कंप्लीटली सेचुरेट रहेगी थ्रू आउट द कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन कितने टाइप के होते हैं? सर कंसोलिडेशन दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी कंसोलिडेशन किस वजह से होता है? सर सेकेंडरी कंसोलिडेशन सॉइल पार्टिकल के स्ट्रक्चर चेंजेस के कारण होता है सर। किसकी वजह से? स्ट्रक्चर सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल स्ट्रक्चर चेंज के हाँ, कारण उनके होता है सर। हम मतलब उनकी प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट की वजह से, उनके डिफॉर्मेशन की यस सर, वजह से। यस सर, उनके प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट की वजह से होता है सर। ठीक है, तो आपकी सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सी है? सर एक तो मैं 2 महीने जो सर को बताए थे वो बताए थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, और इनके अलावा हाँ, जो मैं 2 और प्रिपेयर करके आया हूँ वो है सर सॉइल जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और सर इरिगेशन। अच्छा अच्छा अच्छा। यस सर। चलो, क्लीन कंडीशन क्या होती है सॉइल के अंदर? सर अगर पोर प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाता है, पोर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और उस केस के अंदर इफेक्टिव स्ट्रेस जब 0 हो जाएगा तो सॉइल पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगे, शियर स्ट्रेंथ 0 हो जाएगी। उसी कंडीशन को सर एक क्विक सैंड कंडीशन कहते हैं, जो कि फाइन सैंड में होती है। वो क्ले के अंदर पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्ले के अंदर कोहेजन होता है। ठीक है, ये फाइन सैंड में होती है। यस सर। ठीक है, और ये लिक्विफेक्शन, लिक्विफेक्शन क्या होता है? सर डायनेमिक लोडिंग के कारण, जनरली सर अर्थक्वेक के कारण, जब शियर इसके कारण सर सैंड के अंदर पोर प्रेशर जब पोर प्रेशर में इंक्रीज हो जाए तो उसके कारण भी सर सेम यही फिनोमेना होगा कि इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाएगा और शियर स्ट्रेंथ 0, इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाएगा, शियर स्ट्रेंथ कुछ नहीं रहेगी। उसी प्रोसेस को डायनेमिक लिक्विफेक्शन कहते हैं, जो कि डायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक लोडिंग के कारण होता है। परमिबिलिटी क्या होती है सोइल में? सर एबिलिटी सर सॉइल की टू अलाउ अपने अपने अंदर अपने थ्रू लिक्विड को पास करने देने की एबिलिटी ही सॉइल की परमिबिलिटी कहलाती है। ठीक है, और परमिबिलिटी ग्रेवल की ज्यादा होगी या फिर सैंड की ज्यादा होगी? और रीजन क्यों ज्यादा होगी अगर किसी की ज्यादा होगी दोनों में से? तो सर परमिबिलिटी ग्रेविल की ज्यादा होगी क्योंकि ग्रेविल के पार्टिकल्स की साइज ज्यादा होती है और साइज ज्यादा होने के कारण उसके वॉइड्स की साइज भी ज्यादा होती है, तो इसी कारण से ग्रेविल की परमिबिलिटी सैंड से ज्यादा होगी।
कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर परमेबिलिटी डिपेंड करेगी? सर परमिएबिलिटी कौन वॉइड कौन से रेशियो फैक्टर्स है जिनके ऊपर परमेबिलिटी डिपेंड? यस सर और परमिएबिलिटी वॉइड रेशियो पे डिपेंड करेगी, परमिएबिलिटी फ्लोइंग लिक्विड पे भी डिपेंड करेगी सर, और फ्लोइंग लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करेगी, परमिएबिलिटी पार्टिकल और साइज पे डिपेंड करेगी, परमिएबिलिटी उसकी ठीक है, शेप और पे डिपेंड करेगी कि एंगुलर शेप है या राउंडेड शेप है, हाँ, परमिएबिलिटी उसकी पार्टिकल शेप पे स्पेसिफिक, डिपेंड करेगी। यस सर। ठीक है, और ये बताओ परमेबिलिटी मेजर करने के कौन कौन से मेथड आपने पढ़े हैं, कौन कौन से पता है आपको मेथड जिनसे परमेबिलिटी मेजर करी जाती है सॉइल? सर परमिएबिलिटी मेजर करने की लैब में 2 टेस्ट हैं, लैब के अंदर सर जो मैंने 2 टेस्ट पढ़े हैं, एक तो फॉलिंग हेड टेस्ट और एक कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। सर कांस्टेंट हेड पर, और सर जो एक फील्ड में मेथड है वो सर डिपिट्स मेथड या थीम्स मेथड सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। सीपेज क्या होता है और सीपेज प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन? यस सर। सर सीपीज फ्लूइड का पार्टिकल सॉइल पार्टिकल्स के अंदर, सॉइल पार्टिकल से जब फ्लूइड क्रॉस करता है तो फ्लूइड पार्टिकल्स पे एक फोर्स लगाता है अपने फ्लो की डायरेक्शन में, इसी प्रोसेस को सर सीपेज बोलते हैं। और सीपेज कैलकुलेट करने के लिए सर मुझे पक्का नहीं पता, पर क्या हम हेड लॉस के कारण हेड लॉस देख के सीपेज कैलकुलेट करते हैं क्या? ठीक है, तो जो सीपेज होता है यस जैसे डैम्स के थ्रू, डैम्स के बॉटम से, तो उसको रोकने के लिए अपन क्या क्या करते हैं, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अपन लेते हैं? सर सीपेज डैम्स के थ्रू रोकने के लिए डैम की बॉडी के अंदर सर हम कोर मटेरियल में हम क्ले रख सकते हैं सर, उसके कारण सीपेज कम होगा सर। हम सीपेज हेड डिक्रीज लेंथ ऑफ द फ्लो पाथ बढ़ाने के लिए सर हम वर्टिकल कट ऑफ प्रोवाइड कर सकते हैं, और सर हम एट द डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम हेड सर हम इन्वर्टेड फिल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन तरीकों से सर हम सीपेज कम कर सकते हैं सर। ठीक है, तो ये जो डैम होता है, डैम में अपन एग्जिट ग्रेडियंट प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके लिए अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी रखते हैं ताकि जो डैम्स में जो टेल के जो सोइल पार्टिकल है वो वाटर के साथ में फ्लो ना करें, तो उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन लगभग कितनी रखते हैं? सर मुझे पक्का नहीं पता, पर शायद सर 5 या 6 है क्या? हाँ सही है, ठीक है। यस और मुझे ये बताओ कि जो ट्रस है, ट्रस के अंदर कौन कौन से फोर्सेस आते हैं, कौन कौन से फोर्सेस अपन कंसीडर करते हैं? सर ट्रस के अंदर सारे फोर्सेस जॉइंट्स पे ही लगते हैं, और सर जो हिंज होता है उसको हम सिर्फ उस जो कनेक्शन होते हैं उसको हिंज कनेक्शन मानते हैं। तो सिर्फ कंप्रेशन और मेंबर्स के अंदर सिर्फ एक्सियल कंप्रेशन और एक्सियल टेंशन आता है, इसके अलावा कोई बेंडिंग मूवमेंट नहीं। टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स आता है, बेंडिंग मोमेंट नहीं आता है। यस सर। ठीक है, डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी क्या होती है? सर इनडिटर्मिनेसी पहले मैं डिफाइन करना चाहूंगा सर। इनडिटर्मिनेसी, अगर हम ट्रस के सारे मेंबर फोर्सेस और रिएक्शन कंपोनेंट्स अगर हम नहीं निकाल सकते विद द हेल्प ऑफ द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। और इनडिटर्मिनेसी सर टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन फोर्सेस एंड रिएक्शन फोर्सेस एंड मेंबर फोर्सेस जो विच आर अननोन, वो सर इनडिटर्मिनेसी होती है। और सर अगर वो स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की मदद से अगर हम रिएक्शन फोर्सेस एंड मेंबर फोर्सेस अगर निकाल सकते हैं, तो दैट स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, थ्योरी ऑफ फेल्योर पढ़ा है आपने, तो कौन कौन सी थ्योरी होती है फेल्योर के लिए? सर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी, नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, इसके ऊपर अपन पूछते हैं इसका नाम क्या है और क्या नाम है इस थ्योरी का? सर इसका किस नाम से जानते हैं इस थ्योरी को? रैंकाइन स्ट्रेस थ्योरी।
If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.